Okay, so we'll start with our lecture. I hope जितने भी अभी ज्वाइन हो चुके हैं, we will continue now. I will not wait for them. Okay, I hope my screen is visible to you all. So in last lecture, I guess we have started with the BPM, that is Business Process Management. Okay, there we have seen quite some supportive principles, as well as we have seen what exactly a BPM is, and if you remember, we have seen 10 principles of BPM. That is principle of context awareness, principle of continuity, principle of that is enablement, then principle of holism, institutionalization, involvement, then joint understanding, principle of purpose, principle of simplicity, and principle of technology appropriation. So those particular points we have seen. If you don't remember all these points, so let me show you again that we have done that particular topic. So just let me start with the PPT. So just let me check. Yes, so this particular slides we have seen, if you remember. Yes, so these are the principles we have seen in last lecture, that is about the BPM, business process management. Already we have seen what exactly a business process is, what is business process management, that also part we have seen. Now we will see today again. I will share these principles with you all, and after the principle, we will come to the actual concept of business process, that is about the life cycle of business process management, how that business process is managed. Okay, so some standard life cycle is there, that also we will discuss. Now first of all, we will see again principles of business process management. So as you can see, first principle what they have given is principle of context awareness. So you can see in context awareness, what we need to do is we need to take care that BPM should fit to the organizational context. Okay, so whatever your organization is all about, whatever you have planned, and whatever your core principles are there of your institution or organization, that you need to strictly follow. Okay, just wait, continuously students are coming, so just need to take care. Just wait, huh? Okay, chalo. So as you can see, in principle of context awareness, what BPM point of view, what we need to do is we need to stick to our organizational goals, our organizational vision and mission. So whatever principles our organization is having, that we need to follow. We are not going to follow a cookbook approach. दैट इज कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, यही करना है आपको, अगर ये अचीव करना है तो ऐसा। अगर किसी बुक में ऐसे कुछ लिखा हुआ है एंड उसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ एक्शंस फॉलो करते जाएंगे, तो कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो बीपीएम का सबसे पहला प्रिंसिपल है, दैट इज अबाउट द कंटेक्स्ट। फॉलो योर ओन कंटेक्स्ट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो क्राइटेरियाज प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनको आप फॉलो करो। दैट इज द फर्स्ट वन। Okay, second one is about principle of continuity. Now continuity, इसमें what from BPM point of view, what we need to do is, यहाँ पे we should follow whatever practices we are following, we should follow it on permanent basis. So permanent practice should be there. तो टेम्परेली एक प्रोजेक्ट के लिए आपने ये फॉलो किया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ दूसरा ही अप्रोच यूज कर रहे हो, दिस विल नॉट डन इन BPM. What BPM suggests us that we should continue our practices. So जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल के गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, जो अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, वी नीड टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड वी नीड टू कंटिन्यू इट ऑल्सो.
सो जो भी प्रैक्टिसेस आप इम्प्लीमेंट करोगे टू अचीव सक्सेस इन योर बिजनेस, यू नीड टू फोकस ऑन कंटिन्यूटी। आपको परमानेंटली वो प्रैक्टिस यूज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए यूज किया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कुछ दूसरा ही यूज करेंगे। नो, वी नीड टू स्टिक टू अ परमानेंट प्रैक्टिस। दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड वन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट। अब इनेबलमेंट में यहाँ पे बीपीएम में क्या होता है, दैट इज वी आर गोइंग टू, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होते हैं, दैट इज ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एनी हाउ, बट कस्टमर के साथ देखो, कस्टमर को तो आप डिलीवर करोगे कोई प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट कौन करने वाला है, आपके एम्प्लॉयज। सो आपका कोर पार्ट जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इज एक्चुअली योर एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज आर योर एसेट्स, उनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। सो यू मे हैव हर्ड कि आपने आपके दोस्तों से सुना रहेगा, सुना रहेगा कि अगर जब नए नए जॉब पे वो जाते हैं तो आपने ये पार्ट हमेशा सुना रहेगा, दैट इज एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन हायर्स अ फ्रेशर्स दे गिव द ट्रेनिंग टू द फ्रेशर्स। यस, ये सुना रहेगा आपने। सो ये ट्रेनिंग क्यों देना पड़ता है, क्यों देते हैं, दैट इज ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से प्रोटोकॉल्स है, कौन सा वर्क फ्लो वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है। बट यहाँ पे एक ही बार सिखाने के बाद खत्म हो गया क्या, नहीं, दे शुड कंटिन्यूसली डेवलप देयर सेल्स। एंड फॉर दैट रीजन बीपीएम यहाँ पे आपको हेल्प करता है। बीपीएम आपको बताता है, दैट इज ये प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट में कि दैट इज वी नीड टू डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑल्सो कंटिन्यूसली। 10 साल पहले जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया था आपने, आज 10 साल के बाद उसको बाकी कुछ भी आपने ट्रेनिंग नहीं दिया है, वो सिर्फ वही जो पहले आपने सिखाया था वही काम कर रहा है। तो कुछ मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हाउ कम यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि आपके प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट रहेगा, ये हो नहीं सकता। एंड फॉर दैट रीजन व्हाट वी शुड टेक केयर इज, दैट इज अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट, जिसमें we are going to develop capabilities. Okay, so we need to focus on developing capabilities. It should not be limited to firefighting. मतलब सिर्फ इतना है तो अगर ये रिस्क आता है तो इसको ऐसे टैकल करो, ये रिस्क आता है तो ऐसे टैकल करो, खत्म हो गया। हर बार सिर्फ वही फॉलो करना वो बीपीएम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म। नाउ होलिज्म में व्हाट वी नीड टू डू हियर इज we need to focus on scope of the project. Okay, so BPM should be inclusive of scope, that is in scope. It should not have any isolated focus. तो हालांकि कोई भी प्रोडक्टिविटी होता है उसमें मल्टीपल टीम्स विल बी देयर, है ना, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द टीम्स। बट अगर टीम हमेशा फोकस करे सिर्फ अपने ही गोल्स को अचीव करने के लिए, यस ऑफ कोर्स they need to first try to achieve their goal as per the team requirement. तो टीम जो होता है देखो जब भी एक प्रोडक्टिविटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल लूँ, अभी अपने कॉलेज में फॉर एग्जांपल हमने गोल सेट किया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए अपने बच्चों का। सो अगर देखो ये तो डिपार्टमेंट वाइज भी किया जा सकता है ना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज इन टीम्स। तो सपोज कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, आईटी का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, प्लेन साइंस का डिपार्टमेंट है, सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे। बट अगर ये आइसोलेटेड फोकस हुआ ना तो मतलब उसको अचीव करने के लिए जो अलग अलग आप व्हाट वी कैन से कुछ प्रैक्टिसेस यूज करते हो, तो वो प्रैक्टिसेस सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए रह जाएंगी। दैट इज नोन एज आइसोलेटेड फोकस। नाउ इफ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्कोप जो है, आपके अचीवमेंट का जो स्कोप है, आपके गोल्स का जो स्कोप है ना, वो आप इंक्रीज करो, वो आप बढ़ा दो। सो एज पर द स्कोप यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट वी कैन से इंक्लूसिव ऑफ द स्कोप। तब पूरे डिपार्टमेंट अगर एक साथ आके कुछ प्लान आउट करते हैं एंड प्रैक्टिसेस फाइनलाइज करते हैं तो वो प्रैक्टिस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट होंगे एंड उसका इफेक्ट डेफिनेटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को
मिलेगा। तो इम्प्रूवमेंट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज होगा, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन वाइज होगा तो डिपार्टमेंट वाइज भी होने वाला है। सो वी शुड नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। So that is about the fourth principle. Next one is principle of institutionalization. Now in this, we should not be an ad hoc responsibility. So यहाँ पे बीपीएम में अगर इंस्टीट्यूशन वाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइज आप काम कर रहे हो तो इट शुड बी एम्बेडेड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ओनली। यहाँ पे जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, एडहॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वही कि डिपार्टमेंट वाइज आप काम कर रहे हो, आप आपके डिपार्टमेंट का सोच रहे हो सिर्फ, या आपके टीम का सोच रहे हो, बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोच रहे हो, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगा। यहाँ पे व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज कि कॉमन गोल क्या है आपके, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए कॉमनली आपको क्या एफर्ट्स देने हैं, ठीक है। आप डिपार्टमेंट वाइज या टीम वाइज आप जो भी आपको काम करना है, एडिशनल फीचर्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं या प्रैक्टिसेस यूज करने हैं, आप कर सकते हो, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है या टीम है या आपके जो भी मेंबर्स है, दे आर वर्किंग फॉर अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो। सो बीपीएम क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी देयर। तो आपके दिमाग में, दिल में आपके यही होना चाहिए कि वॉट एवर यू आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है दैट शुड बी एम्बेडेड, वेल एम्बेडेड इन योर बीपीएम। सो दीज आर द फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम। आई होप आपको ये समझे रहेंगे पांचों। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, next one is about the principle of involvement. So as you can see, involvement में आता है BPM should integrate all stakeholder groups. It should not neglect employee participation. So as you can see, principle के नाम में ही दिया है कि इन्वॉल्वमेंट, तो सबका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे ये एक चीज़ होती है हमेशा कि अगर कुछ सक्सेस होता है, मतलब ऐसा देखा जाता है या ऐसा कभी कभी एक्सपीरियंस होता है, तो अगर कुछ सक्सेस मिलता है तो वो सक्सेस, उसका पूरा क्रेडिट जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको उनको दिया जाता है या उनको मिलता है, अप्रिसिएशन उनको मिलता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट हैपन, क्योंकि इससे होता क्या है, कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ डिस्करेज हो सकते हैं, कभी कभी जेलेसी फीलिंग, जेलेसी हो सकती है टीम मेंबर्स के बीच में, क्योंकि ऐसा आपने भी देखा रहेगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि कोई टास्क आपको दिया है करने के लिए, एंड वो कंप्लीट होने के बाद किसी एक को ही अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना कि पूरे टीम को अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो ऐसा होता है कि टीम मेंबर्स जो है उनमें थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर आ सकता है। तो ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग ऑब्वियसली इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, and anybody is working on that particular goal. To achieve that goal, हर एक का participation is must। तो इवन इसमें आप ये भी बोल सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो बेस्ट एग्जांपल, अभी क्रिकेट मैचेस जो चलते हैं, अपना क्रिकेट टीम जो होता है, तो कोई ठीक है, हालांकि एक कोई प्लेयर खेलता है एंड उसके कारण मैच जीतते हैं हम लोग, यस डेफिनेटली ऐसा होता है, बहुत से बार होता है, बट ठीक है, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिलता है। बट द थिंग इज, विदाउट टीम, अगर वो अकेला बंदा रहता उसके टीम में, तो वो अकेला बंदा जीत पाता था क्या? भले वो 100 या 200 बनाओ, हो सकता है क्या? नहीं। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिव एफर्ट, तो सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। सो वी शुड टेक केयर, बीपीएम में वही है, दैट इज वी शुड इंटीग्रेट ऑल स्टेक होल्डर ग्रुप। यहाँ पे किसी को आइसोलेट नहीं करना है, आपको किसी भी एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो अगर आप ये बिहेवियर यूज नहीं करोगे, दैट इज अगर एम्प्लॉयज़ को आप निगलेक्ट करोगे कि इसने इसका रोल बहुत कम था, लेकिन उसका जो भी रोल था उसने वो रोल अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, उसने एफर्ट्स डाले, उसके कारण आपका जो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिव एफर्ट था वो सक्सेसफुली आपने यूज करके गोल्स को अचीव किया है। सो वी शुड टेक केयर दैट प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Next one, seventh one, that is about the principle of joint understanding. Yes, joint understanding is
रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे ऐसा होता है कि देखो टीम्स होते हैं अलग अलग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, टीम के मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज रहेंगे, तो हर जगह पे उनका हर एक का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। सो इस ओपिनियन को व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो हमेशा रहेंगे, बट उसमें सब में डिस्कशन करके वी नीड टू फाइनलाइज वन वर्क फ्लो, एंड उसके ऊपर फिर आपको काम करना पड़ता है। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो बीपीएम शुड क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। यहाँ पे जो भी हर एक का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हर एक के सॉल्यूशंस अलग अलग रहेंगे। तो उन सब से डिस्कशन करके व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि एक बाबा कॉमन आप वर्क फ्लो बना दो, एंड ये कॉमन वर्क फ्लो अगर आप यूज करोगे तो यू कैन इजीली अचीव योर गोल। सो बीपीएम शुड क्रिएट अ शेयर्ड मीनिंग विथ जॉइंट अंडरस्टैंडिंग। इट शुड नॉट बी द लैंग्वेज ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स देखो ऐसा होता है हमेशा कि अभी अगर एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो कभी कभी आपने देखा रहेगा किसी किसी लेक्चर में कि ऐसा होता है कि लेक्चरर आता है, आप आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक धड़ 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 एक्सप्लेन करके करके चले जाता है ना। तो वो जो लेक्चरर होता है, सो कॉल्ड ही और शी इज अ एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो वो आके कुछ तो बोल के चला गया, बट द थिंग इज उसका मीनिंग ही अगर आपको समझ नहीं रहा है, क्योंकि जो लेक्चरर आया है या जो एक्सपर्ट आया है उसने उसके लैंग्वेज में टेक्निकल चीज़ें आपको बता दी, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज टेक्निकल वर्ड्स। आपको मालूम ही नहीं, आपको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझाना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देखो, मैं अभी आपको यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स, मेरा काम क्या है, ये प्रिंसिपल एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है पॉजिटिव एंड एंटोनिम, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो सिर्फ बताने आपको। तो ये बता के ये रीड करके मैं आगे जा सकता था, लेकिन आई एम गिविंग यू सर्टन एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स भी ऐसे दे रहा हूँ दैट इज डे टू डे एग्जांपल्स, जो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जो एग्जांपल याद करके आपको समझेगा कि हाँ बाबा ये प्रिंसिपल में ये होता है, तो आपको इजीली समझेगा। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट शुड बी देयर। तो अगर कोई भी लैंग्वेज ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट्स आते हैं एंड उनके लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके चले जाते हैं, तो यू आर गेटिंग इट और नॉट, ये कैसे समझेगा? And for that reason we should have this particular principle, that is of joint understanding, कि भाई जितने भी मेंबर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, उन सबको what we need to do ये समझा है या नहीं समझा है। So we should create a shared meaning। ठीक है, so what we are going to do उसके related। Then the next one, eighth वाला, that is about the principle of purpose। Obviously purpose means what we need to achieve, what we need to do। ठीक है, so BPM should contribute to strategic value creation। so it should not be done for sake of doing it, मतलब करना है इसके लिए करना है, जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप करोगे उसमें कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। ठीक है, एंड पर्पस में पर्पस होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली अपना सबका कॉमन पर्पस एक ही होता है, कॉमन गोल एक ही होता है, दैट इज अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली। बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए क्वालिटी इंप्रूव करना या क्वालिटी प्रोडक्ट देना, इसके लिए फिर आप जो वर्क फ्लो चाहिए वो यूज़ करो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ऐसा अगर अप्रोच रहेगा तो इट विल नॉट वर्क। So what we need to do is BPM should contribute to strategic value creation। तो आप ऑब्वियसली BPM है, बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस में मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस विल बी देयर, उसके सब प्रोसेसेस रहेंगे। हर सब प्रोसेस में अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू प्लान, वी नीड टू मेक सम स्ट्रैटेजीज, एंड वो जो स्ट्रैटेजीज है वो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको व्हाट वी कैन से वी नीड टू टेक इनपुट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर। हर मेंबर से आप इनपुट लोगे एंड देन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज द स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बनता, टू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी इसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर मैं बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टू बी प्रिसाइज स्ट्रैटेजी क्रिएशन जो है उसके लिए भी एक प्रोसेस यूज होता है, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके,
सो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये भी एक तरह का प्रोसेस ही है, यहाँ पे भी कुछ वर्क फ्लो होता है। नाउ द थिंग इज, देखो डिसीजन डायरेक्टली कभी लिया नहीं जाता। डिसीजन इज व्हाट, देखो कोई भी काम करना है ना तो उसके लिए पहले मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड सो ऑन। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे तो आपके गोल्स जो है वो आप अचीव कर लोगे, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। नहीं तो ऐसा नहीं है, देखो ऑप्शंस जितने भी है, कोई भी ऑप्शंस जब आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, दैट इज आपका प्रोडक्टिविटी जो है या कस्टमर को आपको प्रोडक्ट जो डिलीवर करना है वो गोल आप कैसे भी करके अचीव तो कर लोगे। बट द थिंग इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई, बाकी भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सो क्राइटेरिया इज लाइक कि हाँ आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट कितना लग रहा है, आपका प्रोसेस जो है वो, आपका सिस्टम जो है जो आप क्रिएट कर रहे हो वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर को क्या क्वालिटी आप दे रहे हो, तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो हर क्राइटेरिया को स्टडी करने के बाद जितने भी आपके ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस में से यू आर गोइंग टू चूज वन सिंगल ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव आप यूज करते हो एंड वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट अल्टरनेटिव, एंड उसी को जो चॉइस आप करते हो उसी को हम बोलते हैं डिसीजन। सो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बट उसमें टू मेक अ डिसीजन, टू क्रिएट द स्ट्रैटेजीज फॉर योर प्रोजेक्ट और फॉर योर वर्क फ्लो, what you need to first do is you need to be clear with your purpose। तो आपको क्या करना है एंड कैसे आपको करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो बीपीएम शुड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्रिएशन, ये याद रखो हमेशा, ठीक है। दैट इज अबाउट द एट्थ प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट वन, that is प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। यस ऑफ कोर्स सिंप्लिसिटी कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल बोल रहे हैं, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका लाइफ साइकिल है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू अचीव द गोल। तो सिर्फ उसी के चक्कर में मत रहो कि अरे हम कुछ तो अलग कर रहे हैं, ऐसे मत सोचो। इट शुड बी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब देखो कोई भी चीज़ है ना कि एकदम सिंपल वे में अगर आप करोगे ना तो करने वालों को भी इजी जाता है, जो करता है उसको समझ में भी इजीली आता है। बट द थिंग इज अगर आप उसको ओवर थिंक करोगे, ओवर इंजीनियरिंग करोगे, मतलब यहाँ पे सिंपल सिंपल वे में बताऊंगा कि खाना जो खाते हैं हम लोग सीधे हाथ से खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आड़े टेढ़े होके अगर खाना खाओगे तो मतलब क्या है, आखिरकार तो आप खाना ही खाओगे। सो व्हाट वी नीड टू ट्राई इज दैट इज जितना पॉसिबल है उतना आपका वर्क फ्लो या आपका प्रोसेस यू नीड टू बी सिंपल, सिंप्लिसिटी आपको मेंटेन करना है। सो वी शुड फॉलो दैट बीपीएम शुड बी इकोनॉमिकल, ज़्यादा आप इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा घुसाओगे नहीं, ज़्यादा मतलब कॉस्ट ज़्यादा यूज नहीं करोगे, दैट इज कॉस्ट कटिंग शुड बी देयर एंड इट शुड नॉट बी ओवर इंजीनियर। सिंपल प्रोटोकॉल्स यूज करो, सिंपल टेक्निक यूज करो, सो दैट जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी सिंपली ये समझ में आएगा कि करना क्या है एंड इजीली दे कैन परफॉर्म देयर ओन टास्क एंड थ्रू विच आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे। सो दैट इज योर नाइन्थ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। एंड द लास्ट वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएशन। नाउ डेफिनेटली यहाँ पे जैसे हम बीपीएम के बारे में बोल रहे हैं, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस नाउ इन दिस मॉडर्न एरा एज यू कैन सी कि टेक्निकल इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। वे बैक अगर 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ठीक है कंप्यूटर्स का यूज़ होता ही था बट इतना ज़्यादा नहीं होता था। बट थिंग इज आजकल के ज़माने में जो भी चलता है सब सिस्टम कंप्यूटर पे ही है। सो the point is while implementing BPM we should make opportune use of technology, ठीक है। so whatever technologies you are having तो उन टेक्नोलॉजीज को आप यूज करो सो दैट यू कैन रिड्यूस द वर्क ऑफ ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा काम करने से भी हो सकता है। एंड फॉर दैट रीज़न कि ऐसे जगह पे जहाँ पे
आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो या सिंपल बना सकते हो, तो वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। एंड हेंस दिस लास्ट प्रिंसिपल सजेस्ट अस दैट कि ये जो है टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इंक्लूड करना ही है, बट इट शुड नॉट कंसिडर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एज एन आफ्टर थॉट। आपको टेक्नोलॉजी तो यूज करना है, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही यूज करके सब कुछ करना है ऐसा भी आपको सोचना नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयज आर देयर, दे आर गोइंग टू वर्क, बट द थिंग इज यू कैन गिव सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू द टू योर एम्प्लॉयज फॉर सिंप्लिसिटी। तो आपके एम्प्लॉयज को अगर थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील कराना है, रिलैक्स मतलब रिलैक्स नहीं बट इजी, अगर उनको एफर्ट ये करना है, इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देना है, तो यू कैन स्टिक टू सर्टन टेक्नोलॉजीज एंड वो आप उनको हेल्प के लिए दे सकते हो। बट ओवर भी ये नहीं करना है, ओवर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही आप करोगे। बट डेफिनेटली येस, we are going to use certain technologies, appropriate technologies, okay? So I guess ये 10 प्रिंसिपल्स है। लास्ट टाइम कितने हुए थे मुझे याद नहीं है, 4-5 शायद हमने डिस्कस किए थे। सो मैंने ये फिर से डिस्कशन किया। सो आई होप कि ये जो 10 प्रिंसिपल्स है ये आपको समझे रहेंगे। यस, बोलो जल्दी। ओके, चलो। सो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल बीपीएम प्रिंसिपल्स ये कंप्लीट होता है। ठीक है, then now we will move to the next one, that is about BPM life cycle, I guess. So we will directly go to the BPM life cycle wala part. Just wait. So as we have discussed earlier, BPM is actually what it is, a disciplined approach to identify, design, execute, document, measure, monitor, and control both automated and non-automated business process to achieve consistent and result targeted results. Okay, so ये एक definition है BPM का, ये भी आप याद रखोगे तो easy रहेगा आपके लिए। जस्ट कीप इन माइंड कि बीपीएम हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन अप्रोच होता है, दैट इज हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको डिजाइन करेंगे, देन उसका एग्जीक्यूशन प्लान आप क्रिएट करोगे, वॉट एवर यू हैव डन या वॉट एवर यू आर डूइंग उसको आप मॉनिटर करोगे एंड कंट्रोल करोगे, एंड देन फाइनली आप उसके डॉक्यूमेंट्स बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ से रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद नॉर्मली आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस होता है तो उसमें आप यही देखते हो कि वेदर योर बिजनेस प्रोसेस हैव अचीव द टारगेटेड रिजल्ट्स, गोल्स जो आपने सेट किए थे वो आपने अचीव कर लिए क्या नहीं। तो यही होता है आपका बिजनेस प्रोसेस। नाउ definitely whenever we are going to use such type of what we can say workflow to achieve a target using a business process, then there will be a certain life cycle। तो कोई ना कोई लाइफ साइकिल कुछ ना कुछ वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जो दिख रहा है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बीपीएम लाइफ साइकिल। आई होप आपको दिख रहा है प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। किसी भी बिजनेस प्रोसेस में जाओगे तो आपको ऐसे वाला ही लाइफ साइकिल दिखाई देगा। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइफ साइकिल, तो यू कैन सी हियर लाइफ साइकिल में फर्स्ट थिंग इज दैट इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। सो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन एनी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे अगर बिजनेस प्रोसेस है आपका तो फर्स्ट यूनिट टू फाइंड आउट ना कि भाई करना क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बहुत 2-3 लेक्चर पहले आपको बताया था कि इन एनी ऑफ द लाइफ साइकिल, इवन आप बिजनेस प्रोसेस के बारे में भी मत सोचो, आप आपका डे टू डे लाइफ साइकिल, डे टू डे आपका लाइफ देखो, उसमें भी जो भी आपको टास्क करना है, कोई भी सिंपल, मतलब आपको घर से निकल के बाहर जाके कुछ सामान परचेस करना है या घर में ही चलो इमेजिन करो कि आपको आज चाय बनाना है, तो वो भी एक क्या है, एक टास्क है। सो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। तो आपको याद रही एक क्या है, एक टास्क है। सो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। सो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको वही बताए थे, 2 फेजेस इन एनी ऑफ द लाइफ साइकिल। कोई भी टास्क कंप्लीशन में मेरे हिसाब से 2 ही फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में। और कौन से 2 फेजेस होते हैं? तो पहला आता है दैट इज अबाउट व्हाट टू डू, एंड दूसरा आता है हाउ टू डू।
सो अब ये डिपेंड्स, फिर आपका ये व्हाट टू डू के जो आंसर्स आपको मिलेंगे उसी के ऊपर आप हाउ टू डू के आंसर्स फाइंड आउट करोगे। एंड इनके सबके आंसर्स जब आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई कैन से इज कि इन एनी ऑफ द लाइफ साइकिल हमेशा दो फेजेस के बारे में आपको सोचना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये रियल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो सिमिलरली व्हाट टू डू में आता है पहले करना क्या है ना, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड हेंस द फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ साइकिल इज यू कैन सी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है भाई, उसके बाद यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज अबाउट द प्रोसेस डिस्कवरी। सो यहाँ पे कि जो भी आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है उसको आप डिस्कवर करो, उसको एनालाइज करो। सो एनालाइज मतलब क्या, तो एनालिसिस होगा यहाँ पे कि कैसे करना है, कैसे करना है नहीं, तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो आपका, तो वो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज यू नीड टू प्रिपेयर अ टी, आपको चाय चाय बनाना है। तो अब यहाँ पे एनालिसिस क्या करोगे, तो पहले तो चाय किसके लिए बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है ना, कैसा चाय बनाना है, तो ये सब जो है तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये आपको कोई आके बताने वाला है नहीं, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इतने लोग हैं तो कितना कप ऑफ मिल्क आपको लगेगा, कितना वाटर लगेगा, कितना वो पाउडर लगेगा, टी पाउडर, कितना शुगर आपको यूज करना है। तो ये दिस पर्टिकुलर पार्ट कम्स अंडर एनालिसिस। तो ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल वाला प्रोसेस जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, क्योंकि एक बंदे अपने खुद के लिए बनाना है तो आपको मालूम है कैसे करना है, बट अगर यही 10 लोग आ रहे हैं आपके घर पे एंड उनके लिए अगर आप चाय बना रहे हो तो ऑब्वियसली इट नीड्स एनालिसिस। सो एनालिसिस में आप क्या करते हो, वी फाइंड आउट द इनसाइट्स। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अरे इतने लोग रहेंगे तो कितना यहाँ पे मेजर किया जाता है कि कितना आपको ये लेना पड़ेगा, सब कंटेंट लेने पड़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एनालिसिस। ओके, सो एनालिसिस आप करोगे, एनालिसिस के बाद होता है आपका रीडिजाइनिंग। प्रोसेस को रीडिजाइन करते हो आप कि वॉट एवर बिजनेस प्रोसेस यू हैव, रीडिजाइन मतलब एक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके पास हमेशा रहता है किसी भी प्रोसेस का। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको चाय बनाना है, तो आपके खुद के लिए जो आप चाय बनाते हो प्रोसेस सेम है। क्या है, दैट इज चाय बनाने के लिए ऑब्वियसली मिल्क लेना है, वाटर थोड़ा सा लोगे, चाय पाउडर लोगे एंड शुगर लोगे, आप बॉईल करने के लिए डाल दोगे एंड थोड़े टाइम के बाद आपका चाय तैयार हो जाएगा। ये एक डिजाइन है आपके प्रोसेस का कि यही होता है ना, यही करते हैं। जस्ट द थिंग इज एज पर द एनालिसिस नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि अभी एक जन के लिए आप जो करते थे वो आपको 10 जन के लिए करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू चेंज द डिजाइनिंग, मतलब क्वांटिटी कितना लेना है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड तक बॉइलिंग करना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज अ रीडिजाइनिंग। तो प्रोसेस यू नो, आपको प्रोसेस मालूम है कि एनालिसिस में आपको पता चल गया कि प्रोसेस क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिस्कवर कर लिया, सब कर लिया। बट नाउ द थिंग इज एज पर द एनालिसिस नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू एंड फॉर दैट रीजन आपको अब आपका जो प्रोसेस है उसको रीडिजाइन करना है। वो रीडिजाइन करने के बाद आप उसके मॉडलिंग करते हो कि कौन सा मॉडल यूज करना है। अब ये मैं बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वर्क फ्लो या फ्लो चार्ट या टी चाय बनाने के लिए हम लोग ये मॉडलिंग एंड ऑल यूज नहीं करते। मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ बताया कि एक सिंपल सा एक बिजनेस प्रोसेस। सो एनी ऑफ द टास्क, कोई भी टास्क मैं इवन अगर आपको सिंपली बोलूँ ना, आपको घर से निकल के कॉलेज आना है, 7 बजे का लेक्चर अटेंड करना है कॉलेज में, तो वो भी एक टास्क ही है। अब उसके मायने थोड़े से अलग हो जाएंगे क्योंकि घर से निकल के कॉलेज जब आना है आपको, तो उसमें भी एनालिसिस क्या होता है कि आपको 7 बजे पहुंचना है। आपने आप देखोगे फिर यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट समझेगा कि घर से निकले हो से 6:30 को निकले हो, इफ़ यू स्टे इन कलवा, तो आधे घंटे में आप कॉलेज पहुंच सकते हो क्या, तो पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो ये देखो ये सब एनालिसिस है। हाँ क्या, तो ऑटो रिक्शा से आप जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज अबाउट द स्ट्रैटेजी, दैट इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
तो यहाँ पे देखो, अभी आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि आप एक तो ऑटो से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, या बस से जा सकते हो। अब कौन सा ऑप्शन चूज करें सो दैट आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू मतलब आपका प्रॉफिट होगा, ओवरऑल कॉस्ट कितना लगने वाला है, ये सब आप देखते हो, है ना। बट ये हम रियलाइज नहीं करते, इसी को सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में डाल के बिजनेस प्रोसेस करके बोला जाता है, एंड एनालिसिस, ये ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये सब चीज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। इवन हम जाते हैं बाहर कुछ सामान परचेस करने के लिए, व्हाट वी डू देयर, बार्गेनिंग एंड ऑल, ये सब क्यों करते हो आप? दैट इज ओवरऑल कॉस्ट आपका कम हो एंड आपका रेवेन्यू ज़्यादा, मतलब आपको प्रॉफिट हो, आपका पैसा बचे, इसीलिए तो काम करते हो आप। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्रोसेस एनालिसिस में हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि व्हाट वी नीड टू डू, एंड उस हिसाब से फिर आप मॉडलिंग करते हो कि कौन सा मॉडल आप यूज़ करें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप घर से निकले हो, कॉलेज आ रहे हो, तो कौन सा मॉडल यूज़ करें, कौन सा डिसीजन आप ले, सो दैट आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, सो दैट आपको प्रॉफिट होगा, एंड आपका गोल भी आपका अचीव होगा। सो फिर आप ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट, मनी आपके पास कितना है, क्योंकि बस के लिए कितना लगता है, ट्रेन के लिए कितना लगता है, एंड ऑटो के लिए कितना लगता है, ये सब आपको मालूम है ना। तो आपके जेब में कितना पैसा है, तो वो आप एनालिसिस करोगे, वो आप देखोगे कि उस हिसाब से आपको आगे का पूरा प्लान करोगे, दैट इज नोन एज ए इनसाइट्स। तो आप इनसाइट्स लोगे, एंड देन फिर आप प्रोसेस को रीडिजाइन करते हो कि आपने मे भी अपने घर से दिमाग में डाल के चले थे कि मैं रोज तो मैं बस से जाता हूँ, आज भी बस से जाऊंगा, बट अब देखो यहाँ पे रिस्क आना चालू हो गया। बट सपोज आज बस ही नहीं है, बस गया, आपका मिस हो गया, नाउ व्हाट यू विल डू? अब उसके बाद डायरेक्टली आधे घंटे के बाद बस है, तो क्या करोगे? सो गया आपका ऑप्शन। सो वी नीड टू रीडिजाइन आवर प्रोसेस अगेन, आपको दूसरा प्लान जो है, प्लान ऑफ एक्शन, वो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। सो यू विल चेक कि आपके जेब में कितना पैसा है, अगर ज़्यादा है तो यू कैन अफोर्ड ऑटो रिक्शा, तो आप ऑटो रिक्शा से जाओगे, टाइम सेव करोगे, बट कॉस्ट गया, बट आपका गोल तो अचीव हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर एनालाइजिंग अवर प्रोसेसेस इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो, एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी ऐसा ही होता है। जस्ट द थिंग इज उसके गोल्स कुछ अलग होते हैं, एंड उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। आई थिंक यू कैन रिलेट दिस पर्टिकुलर थिंग, यस। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो आप रिलेट कर पा रहे हो बिजनेस प्रोसेस के साथ? यस, ओके। सो आई होप, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपको ना थोड़ा इजी जाएगा समझने के लिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल वर्ड्स है ना, तो फिर थोड़ा सा ये मोमेंट जो है, मतलब ये जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा लाइटर वे में आपके आपके तरफ पहुंचे एंड आपको इजीली याद रहे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट यू नीड टू वरी अबाउट इज कि क्वेश्चन का आंसर, ये जो स्टेप्स आपको जो दिख रहे हैं, ये स्टेप्स के बारे में सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, बाकी आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि एनी हाउ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द बिजनेस प्रोसेस ओनली। ओके, सो बिजनेस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस होने के बाद वी नीड टू डू प्रोसेस रीडिजाइनिंग, एंड यहाँ पे रीडिजाइनिंग में डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइनलाइज द मॉडलिंग। मॉडल, मॉडल मतलब कौन सा? रैंप पे वॉक करते वो मॉडल नहीं, तो बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मॉडल्स, ठीक है। तो याद रखो चाहिए तो, बट उस वी नीड टू आइडेंटिफाई द मेथड्स, मेथडोलॉजी, कि कौन सा मेथड यूज करके हम प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, दैट इज डन इन प्रोसेस रीडिजाइनिंग। देन डेफिनेटली ये सब फाइनलाइज होने के बाद अभी आपके पास मेथड्स भी है, आपको मालूम है कि एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्लान। सो वॉट एवर वी हैव प्लान नाउ, तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन जब आप स्टार्ट करते हो, नाउ द थिंग इज यू कैन सी हियर, यहाँ पे दो चीजें दी है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऊपर जो दिया है दैट इज अबाउट द प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? तो जो भी हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दैट इज नोन एज एग्जीक्यूशन। इसको हम एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। सो प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन।
सो वट एवर मॉडल्स वी हैव फाइनलाइज, उस मॉडल का यूज करके हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद फिर से हमें एक काम तो करना ही है कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, आपका प्रोसेस रन हो रहा है, काम तो चल रहा है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप काम करते हो ना, उसमें कभी ना कभी रिस्क आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इश्यूज अकर हो सकते हैं। सो we need to deal with that particular issues also, and continuously because of that we need to monitor and control our business process also। तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है उसके एग्जीक्यूशन को वी नीड टू मॉनिटर कंटिन्यूअसली। आप मॉनिटर करोगे कि एज पर द प्लान मैंने जैसे डिसाइड किया है वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो देखना है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने एग्जीक्यूशन चालू रखा एंड कंप्लीट हो रहा है टास्क, एंड फाइनली आप आउटकम देख रहे हो, अरे कुछ तो गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ क्यों हुआ, तो वो फिर बाद में आप देखना स्टार्ट करोगे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट आपका जाएगा ज़्यादा। सो बेटर, इट्स बेटर टू डू द मॉनिटरिंग ऑन एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन करते वक्त ही आप मॉनिटरिंग करो। एंड कंट्रोलिंग मतलब क्या, तो वी नीड टू कंट्रोल। सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करो। अगर एज पर द प्लान नहीं जा रहा है आपका प्रोसेस, तो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको कंट्रोल करो, सो दैट एज पर योर प्लान ओनली योर एग्जीक्यूशन शुड बी देयर, ये आपको देखना है। सो दैट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ओके, सो एज यू कैन, लास्ट वाला एक फेज आता है दैट इज अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे एक्चुअली आप जो भी आपका गोल हुआ कंप्लीट हुआ है, वट एवर वट वी कैन से कि आउटकम जो आया है, तो वो आउटकम एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कॉस्ट सेविंग हुआ है या नहीं हुआ है। वी नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क, वट एवर रिस्क आए थे या प्रॉब्लम्स इश्यूज अकर हुए थे वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, तो क्या क्या रिस्क आए थे, एंड फिर उनको सॉल्व करने के लिए फिर आपने क्या क्या यूज़ किया, सॉल्यूशंस क्या अप्लाई किए, तो ये सब जो होता है दैट कम्स अंडर द ऑप्टिमाइजेशन। सो दीज आर द सम ऑफ व्हाट वी कैन कॉल इट एज कि आपका बीपीएम का लाइफ साइकिल। आई होप आपको ये समझा रहेगा बीपीएम लाइफ साइकिल। So these are the phases, that is first one process identification, then process discovery, process analysis, then redesign of business process, process implementation is there, then process monitoring and controlling। So I hope आपको ये समझा रहेगा। yes, समझा। और भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इसमें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा देखते हैं कुछ बीपीएम लाइफ साइकिल में मिलता है क्या। just need to check, just wait। एक मिनट, हाँ। चलेगी, ये इमेज ही दिखा देता हूँ, अगर ये इमेज दिख रहा है आपको तो प्रॉपरली। सो एटलीस्ट आपको वो लाइफ साइकिल का ये तो पता चलेगा। सो आई होप अभी यहाँ पे आपको वो डायग्राम दिखाई देगा, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल। यस, थोड़ा सा छोटा है डायग्राम, बट यू कैन सी हियर। ये डायग्राम जो है, थोड़ा सा मैं, हाँ, आई गेस दिख रहा है सबको डायग्राम प्रॉपरली। एक मिनट, हाँ दिख रहा है अभी। यस, सो दिस इज द लाइफ साइकिल एज यू कैन सी, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो होप सो जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसके साथ आप ये रिलेट कर सकते हो। सो दिस डायग्राम यू आर गोइंग टू फॉलो, ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर द बीपीएम लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट स्टेप इज अबाउट द डिजाइनिंग, जिसके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल आता है। मॉडलिंग, तो यहाँ पे आप रीडिजाइनिंग करते हो। देन एग्जीक्यूशन आता है, एग्जीक्यूशन को वी नीड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल।
and the last one is about the optimization. So optimization is generally like a reporting, a document making. तो reports बनाते हो आप यहाँ पे normally. ओके, सो आई होप ये बीपीएम लाइफ साइकिल का टॉपिक आपको समझा हो. यस, अगर समझा रहेगा तो वी विल गो फॉरवर्ड. चलो ठीक है. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट okay, theories of business process, business management process. Now in theories of business process management, यहाँ पे दो थियरीज इम्पोर्टेंट है, तीन है एक्चुअली. दैट इज फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली अबाउट द लाइफ साइकिल. आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल. सेकंड आता है दैट इज अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड एक आता है दैट इज अबाउट द सिक्स सिग्मा. नाउ ये दो तीन थियरीज है. ये थियरीज के बारे में वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दिस थियरीज है. तो सबसे पहला इसके बारे में बताना चाहूँगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल दिस थ्री मेथड्स, दैट इज अबाउट बीपीएम लाइफ साइकिल होने दो या टीक्यूएम बोला जाता है उसको, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नाम से ही पता चल रहा है आपको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना है आपको. ओके, एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी आपको कस्टमर को देना है. एंड द लास्ट वन इज अबाउट द सिक्स सिग्मा. सो ये तीनों जो मेथड्स है ये ऑलमोस्ट सेम है. दैट इज इनका एक्चुअल गोल होता है टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रोसेस एंड रियलाइज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. तो तीनों का एक्चुअल गोल होता है दैट इज टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, टू मेक कस्टमर सेटिस्फाई, एंड जो भी गोल्स सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अचीव करना. हाउएवर बीपीएम लाइफ साइकिल इज मोर टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूजेज. ओके, बीपीएम लाइफ साइकिल में नॉर्मली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. टीक्यूएम दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एम्फोसाइज किया जाता है ऑन हायर क्वालिटी प्रोडक्ट. क्वालिटी कितना इम्प्रूव कर रहे हो आप, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. एंड सिक्स सिग्मा इज वेरी डिस्क्रीट इन नेचर एंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम बेस्ड, एरिया बेस्ड. तो किसी प्रॉब्लम पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है इन सिक्स सिग्मा. तो नॉर्मली ये डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करके सिक्स सिग्मा में काम किया जाता है. सो ऑल दिस थ्री what we can say categories or theories for BPM are just for the benefits of achieving goals, or rather to give better performance in your BPM business process में अच्छे से perform करना है. तो we are going to follow these three theories, but तीनों का थोड़ा काम अलग अलग है. BPM लाइफ साइकिल जो है वो IT टेक्नोलॉजीज का यूज़ ज़्यादा करता है टू अचीव गोल्स. टीक्यूएम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एम्फोसाइज करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में. एंड सिक्स सिग्मा जो है वो फोकस करेगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे. ठीक है, तो उन प्रॉब्लम बेस्ड एरियाज रहेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है वो देखने का काम करेगा आपका सिक्स सिग्मा. सो दिस इज व्हाट अबाउट टीक्यूएम इज. जस्ट लेट मी शो यू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. So what is TQM? So TQM is an integrated organizational approach in delighting customers. देखो, कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है बाय मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशन. खत्म, इतना ही याद रखो. एंड जो नीचे दिया है ना आपको स्क्रीन पे एंड में जो दिख रहा है कोट में, दैट इज टू डिलीवर हाईएस्ट वैल्यू एट लोएस्ट कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यू नीड टू डिलीवर बट एट लोएस्ट कॉस्ट. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, जब क्वालिटी का बात आता है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि लो कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी मिल सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आपको क्वालिटी भी चाहिए एंड कॉस्ट भी कम चाहिए फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू? नाउ इंडिया में तो अपने जो हम लोग जो भी कस्टमर्स हैं ना, उनका यही मानना होता है क्या, कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए बट कम दाम में चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इट इज़ लाइक कि प्रोडक्ट तो हमें जापान के टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया हुआ चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे ऊपर है. ठीक है, बट हमें
कॉस्ट क्या चाहिए, चाइनीज, मतलब प्रोडक्ट चाहिए आपका, आपको क्वालिटी वाला, एंड कॉस्ट उसका चाहिए आपको चाइनीज। आपको मालूम है चाइनीज प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत कम होता है। अब क्यों कम होता है, क्योंकि उनका क्वालिटी कम होता है, क्वालिटी लो होता है, इसीलिए उनका कॉस्ट भी कम होता है। अभी जापानीज टेक्नोलॉजीज के बारे में देखो, उनका क्वालिटी भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। So you are not going to get higher quality at the lowest cost anyhow. But yes, from BPM point of view, what we need to try is we need to deliver highest quality at that particular cost. कि भाई लोएस्ट कॉस्ट है माना, बट उस कॉस्ट में भी हाईएस्ट क्वालिटी आप अगर डिलीवर कर पा रहे हो, तो वी नीड टू do that. And that is what about TQM is. So total quality management is all about delivering highest quality value at lowest cost. Okay. So यहाँ पे तीन important terms होते हैं, that is first one total, then quality, and last one is management, that is about TQM. So total, the responsibility for achieving quality rests with everyone, a business, no matter what their function is. So it recognizes the necessity to develop process across the business that together lead to the reliable delivery of exact and agreed customer requirements. So mark this particular point, ये एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम कभी भी अगर किसी क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हो ना, तो आपको उसके रिक्वायरमेंट्स मालूम होते हैं, एंड उसी रिक्वायरमेंट्स को वी नीड टू मीट, उसी रिक्वायरमेंट्स पे वी नीड टू वर्क। एंड अगर उस रिक्वायरमेंट, अगर आप वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग एवरीथिंग टू द कस्टमर। So the first point is about total. So whatever you are going to deliver, तो वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा का पूरा एग्जैक्ट कस्टमर को जैसा चाहिए वैसे यू नीड टू गिव, दैट इज अबाउट द टोटल। नेक्स्ट वन इज अबाउट द क्वालिटी। अब क्वालिटी के बारे में और क्या ही बोले हम लोग, क्वालिटी के बारे में 10 बार हम बोल चुके हैं। तो जब तक देखो क्वालिटी, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिटी इज व्हाट, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके हिसाब से क्वालिटी नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन बिजनेसेस कि आपके हिसाब से क्वालिटी इज लो बट कस्टमर के हिसाब से क्वालिटी इज हायर। तो इट इज अप टू द कस्टमर टू डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एज पर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वट एवर प्रोडक्ट यू आर डिलीवरिंग, तो you should take care that customer should be satisfied and he gets the quality product. Okay. And the last one is about the management. Yes, definitely to achieve quality for the customer, या फिर उनके साथ जो communication and all जो भी होता है, तो उसमें उसको लीड कौन करता है, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का ये ड्यूटी है, दैट इज टू अचीव द क्वालिटी फॉर द कस्टमर्स, कम्युनिकेशन करना उनके साथ, एंड देन एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करना, एंड इंश्योरिंग द राइट बिजनेस प्रोसेस इन द प्लेस। तो ये सब काम जो है ये टॉप मैनेजमेंट का है। सो दीज आर द थ्री सिग्निफिकेंस टर्म्स वी यूज नॉर्मली इन TQM, दैट इज टोटल, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। ओके। सो ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। इसके बाद मेरा लेक्चर है दूसरा। सो इससे ही हम लोग कल के लेक्चर में आगे जाएंगे, एंड वी विल सी फर्दर एक्सप्लोर अबाउट TQM एंड सिक्स सिग्मा। ओके। So we'll stop here. Just wait. Let me take the attendance. एक मिनट। आज का डेट क्या है? आज का डेट 18। चलो बोलो, रोल नंबर 1, 1 to 10। ओके। 4, ठीक है। 9, 10। नेक्स्ट 8 भी है क्या? ओके। 11 to 20, 13, 15, 17। एक मिनट, 15 एंड 17। ओके। चलो नेक्स्ट 21 to 30, 24, ओके। 26, ओके।
अरे यार 12 आ गए अभी। ओके चलो 12 का भी लगा दिया। चलो आगे। 31 to 40। 32। नेक्स्ट। 30। रुको 34 है। 37 है। 36 भी है। एंड 40। चलो नेक्स्ट। 41 to 50। 48। 40। अरे यार यार क्यों ऐसा करते हो। टाइम जा रहा है मेरा। ये क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। रुक जाओ 1 मिनट। कौन कौन है। 48 9। 35 यार। 35 का हो गया ना फिर क्यों दे रहा है। चलो आगे। 48 हो गया। 49 हो गया। चलो 51 to 60। 52। ओके। 57 59। नेक्स्ट। चलो 301 से 2 3 4। 1 मिनट। 2 3 4 एंड 9। ओके। चलो 11 to 20। 14। ओके। 13। ओके। 16। 18। ओके। नेक्स्ट वन। 21 to 30। 23। ओके। 26। ओके। आगे। 31 to 40। 34 एंड 36। 1 मिनट हाँ। 34 एंड 36। ओके। 28 हो गए। अरे यार तुम लोग ना। ओके। 40 एंड 43। 1 मिनट। 40 एंड 43। ओके। हाँ 28 लगा दिया। चलो। चलो थैंक यू एवरीवन।